فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ، کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ مبارک برکتیں بہاریں لٹا رہا ہے، عشرہ رحمت یہ جاری و ساری ہے، اور دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں، اسی طرح اس ماہ مبارک کی عظیم اور مبارک راتیں بھی گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دن تو بندہ روزہ رکھ کے گزار لیتا ہے، لیکن رات کے اوقات میں کچھ ایسی مصروفیات بندہ پال لیتا ہے، کچھ ایسے معمولات اپنے بنا لیتا ہے کہ جو غفلت کے زمرے میں آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ گناہ کی مد میں بھی چلے جاتے ہیں، یعنی آدمی رمضان کی رات میں گناہوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راتیں تو سارا سال ہی ہم گزارتے ہیں، کوئی غفلت کی نظر کرتا ہے تو کوئی سو کر اس کو گزارتا ہے، اور کچھ اس کو عبادت میں صرف کرتے ہیں، مگر رمضان کی راتیں ایسی ہیں کہ غافل بھی بیدار اور عبادت کی جانب راغب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ راتیں رحمت بھری، مغفرت سے لبریز اور جہنم سے آزادی کی نوید سناتی۔ انہی راتوں میں قرآن کا نزول بھی ہے، تراویح کی لذت بھی ہے، رکوع اور سجود کے مزے بھی ہیں، ذکر و اذکار کی حلاوت اور سحر و افطار کی نعمت بھی ہے، مگر اس دور میں ہم رمضان کی راتیں کھانے پینے، ہنسی مذاق، آپس کے میل ملاپ اور بازاروں میں گھوم کر ضائع کر دی جاتی ہیں۔ کیا ایسے بنے گا ہمارا معاشرہ، مثالی معاشرہ؟ اللہ اللہ، ساری رات چوری کی بجلی استعمال کر کے کرکٹ کھیلنا اور دیگر چوپال پہ بیٹھ کے لوڈو کھیل کے وقت گزار دینا۔ نگران مرکزی مجلس شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی لیں گے موضوع کے حوالے سے، آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر دن میں تو روزے کی ترکیب ہوتی ہے، افطار میں عاشقان رسول جو ہے وہ افطاری کا انتظام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، شربت بھی پلاتے ہیں، لیکن رات کا ماحول بسا اوقات عجیب سا بن جاتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چوری کی لائٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ جو بلب استعمال کرتے ہیں اس میں وہ ٹیوبز جو استعمال ہوتی ہیں، لائٹیں، وہ بھی ہزار واٹ کی لائٹیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ ایک طرف چوری کی بجلی استعمال کرنا رمضان کی راتوں میں، اور یہ گل گپاڑے کے اندر اور شور شرابے کے اندر خام خواہ میں گزار دینا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ عرض یہ ہے کہ یہ انداز نیا نہیں ہے۔ جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھے، ہم تب سے رمضان مبارک کے راتوں اور دنوں کو اس طرح گزارنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ جی، میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھا، میں وہاں سے چلتا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے کوئی ایسا مذہبی اور دینی مدنی ماحول میسر نہیں تھا، دور تک نہیں تھا، نہ مجھے کوئی ایسی دوستوں کی صحبت حاصل تھی جو دین سے تعلق رکھتے ہوں اور اس طرح کا کوئی انداز ہو۔ میں وہاں سے چلتا ہوں، کیونکہ جس
جس طبقے کی آپ بات کر رہے شاید یہ وہاں کھڑے ہیں جہاں کل آج سے 90 میں جہاں کھڑا تھا، میں یہ دیکھتا ہوں. تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ رمضان کی راتوں کا کیا اہمیت ہے اور اس کے دنوں کا کیا معاملہ ہے. جی. اور روزے تو ہم بھی اس وقت بھی رکھا کرتے تھے جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھے، گھر کا ماحول تو تھا، لیکن وہ جو آپ نے اس پہ جو ایک نقشہ کھینچا وہ نقشہ ہمارے پاس بھی، وہ سمجھے کہ آپ نے ہمارے ماضی کی باتیں بیان کی ہیں، آج اس میں باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج اس میں اضافہ ہوا ہے کمی کے بجائے. یہ کنڈے کی لائٹیں چوری کی تھیں یہ ہمیں پتہ نہ تھا. یہ راتوں کو اس طرح کھیل کود تماشوں میں نہیں گزارنا چاہیے یہ ہمیں پتہ نہ تھا. صرف ایک تو تھا کہ بتا دی جب تک کہ ہمارے سامنے رمضان مبارک کی اہمیت، ان کی راتوں کی اہمیت، پھر وہ روزوں کو کس طرح تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا چاہیے اس کا بیان، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان مبارک کی ان مابرکت گھڑیوں کا ادب اور احترام، اور سب سے بڑھ کر میں اگر آپ کو عرض کروں وہ یہ کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں. یہ سارا کیونکہ یہ ایک لمحے کا یا ایک نشست کا یا ایک سلسلے کا کام نہیں ہے سلمان بھائی. جی. کیا آپ کہیں کہ ہم ایک سلسلہ کر لیں گے اور ہم یہ بہت بڑی تبدیلی لے کر آ جائیں گے. میں تو یہ عرض کروں گا اگرچہ یہ کہہ کر سلسلہ بھی ختم ہو سکتا ہے لیکن ڈیفینیٹلی ہم کو اشادہ کی سلسلہ چلانا ہے. جی بالکل. کہ جب تک اس طبقے کو صحیح معنوں میں مدنی ماحول نہیں ملے گا، عاشقان رسول کی صحبت نہیں ملے گی، شاید ان کو ہماری بات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ راتیں گناہوں میں اور فضولیات میں خرچ کرنے کے بجائے ان کو تو عبادت میں خرچ کرنا چاہیے. یعنی میں اس کو یوں سمجھا دوں کہ کل کو ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم جیسوں کو مدنی ماحول میں آنے کے بعد پتہ چلا، یعنی نائٹ میچ ہم بھی کھیلا کرتے تھے، ہماری زندگی کا انداز نائٹ میچ اور یہ کھیل رات یعنی رمضان مبارک کی رات تو پھر رات ہے نا، اور سحری تک جاگنے کا ایک جیسے کہ ذہن ہے کہ سحری تک جاگنا ہے. مسجدوں کی حاضری اس وقت بھی بعض اوقات رمضان میں ہو جایا کرتی تھی، کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی. لیکن میں اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ آج جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی راتیں کتنی بابرکت ہیں اور اس میں عبادتوں کا کتنا ثواب ہے، اور اس میں جو اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور روزے دار کا سونا عبادت کہا جائے، بہت سارا ثواب. یہ اس کو یوں سمجھیے کہ بادشاہ اپنی سواری کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو اس کی جھولی میں ایک پتھر گرا. تو پتھر گرا تو وہ سواری رک گئی. بادشاہ کو پتھر کس نے مارا بھائی؟ بادشاہ نے پتھر لیا، دیکھا، کہا کہ یہ پتھر مارنے والے کو پکڑ کے لاؤ. لوگ دوڑے کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے. پیچھے گئے تو ایک باغ ٹائپ کا جگہ تھی، کھیت یا باغ، اس میں ایک دیہاتی کھڑا تھا اور وہ پھل توڑنے کے لیے پتھر پہ پتھر دیے مار رہا تھا. اس کو پکڑ کے لیا، چل گستاخ، بادشاہ سلامت کو تیرے ہاتھ سے آ کر پتھر لگائے. وہ پکڑ کے بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ پتھر تو نے مارا ہے؟ کہا تو نے پتھر کہاں سے لیے؟ کہا میں فلاں جگہ گیا تھا تو اتنا بڑا پتھر نظر آیا، اس کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے بنا لیے. تو کر کیا رہا ہے؟ بولا میں تو پھل توڑ رہا ہوں اس پتھروں سے، ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے. اور اب اڑتا ہوا آپ کو لگا. بادشاہ سلامت معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، آئندہ خیال کروں گا. بادشاہ کہہ رہا تھا اور نیرے دیہاتی تجھے پتہ ہے کہ تو کر کیا رہا ہے؟ چلے کیا ہوا؟ بولا اور کتنے ہیں؟ بولا یہ آخری تھا جو آپ کو لگ گیا. یہ آخری تھا جو آپ کو لگ گیا، باقی بولا باقی تو پتہ نہیں کدھر گر گئے. تو کہا ارے نادان، یہ پتھر نہیں ہے، یہ تو انمول ہیرے تھے. تو تجھے پتہ ہی نہ تھا کہ یہ ہیرے تھے اور تو اس کو پتھر سمجھ کر اس کو ضائع کرتا رہا. بولا اب تو سارے چلے گئے، اب کیا رہا؟ وہ کچھ بھی نہ رہا. تو یہ جو ہم جن گھڑیوں کو گزار رہے ہیں نا غفلتوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے کبھی کوئی آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ آپ یہ انمول ہیرے ہیں، یہ انمول گھڑیاں ہیں، یہ پرائس لیس مومنٹس ہیں جنہیں آپ غفلت میں، کرکٹ میں، دوستوں میں، موٹر سائیکل پر اور یہاں وہاں گزار کر صرف آپ کو یہ ہے کہ بس رات کے 3 ساڑھے 3 4 بج جائیں، گھر پہ جائیں، سحری کریں،
फजर पढ़ी या नहीं पढ़ी औंधे मुँह सो जाएं और सोते सोते रोज़ा गुजार दें। भाई ये इस वक्त है, तो इस तरह कैसे काम चलेगा क़यामत के रोज़? इन मतलब कि जो घड़ियाँ हमने बर्बाद की, इनका अगर हिसाब लिया गया तो क्या जवाब देंगे? आप बजा फरमा रहे हैं। हमारे पास कुछ खबरें भी हैं रमज़ान शरीफ की रातों के हवाले से, मतलब क्या निज़ाम चल रहा है, क्या मामलात चल रहा है। खबर है कि रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस महीने में भी मनचले नौजवान वन व्हीलिंग से बाज न आए। कई जगह पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सख्ती भी है, मगर इसके बावजूद वन व्हीलिंग का रुझान ख़तरनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। मरकज़ुल औलिया लाहौर से ये खबर है कि वन व्हीलिंग के मुकाबलों में इजाफा हो रहा है और फिर इन मुकाबलों में जुआ भी खेला जा रहा है, और ना सिर्फ वहाँ के शहर के बल्कि दीगर शहरों से आकर के लोग भी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, और लाखों रुपए की शर्त और लाखों रुपए का जुआ इन मुकाबलों के अंदर जो है ये खेला जा रहा है। एक तरफ ये भी है भाई, ये जो खबरें आप सुना रहे हैं ना, ये अमूमन स्कूल कॉलेजेस के मनचले नौजवान होते हैं। मैं थोड़ा सर की तरफ जाऊंगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी बिल्कुल सर। एक आप माशाल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में देख रहे हैं शब व रोज़, जामिअतुल मदीना में भी आपने असातिज़ा और तलबा कराम को देखा है, दुनियावी जो एजुकेशन सेक्टर है उसके भी आपको सूरत हाल का इसका अंदाज़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अदब और एहतराम और जो एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत और मतलब के अमल करने का जज्बा एक दीनी तालिब इल्म में है, और स्पेशली ये मदारिस और जामियात के अंदर, क्या ये स्कूलों के अंदर ऐसा लगता है? कि मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि स्कूल के अंदर ऐसा हो गया कि जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स से खौफज़दा हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स के सामने सर उठाकर चलने, इनके साथ बदतमीज़ी करने, ये है। धमकियां दे रहे हैं हुजूर, धमकियां देते हुए तो हमने खुद ये निज़ाम मामले देखे हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको क्या लगता है कि ये जो रोडों पे जो घूम रहे होते हैं, इनको अगर टीचर भी समझाएंगे तो ये टीचर को कैसे समझाएंगे? ऐसा तो नहीं लगता कि अंदर स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी इन चीज़ों को प्रोमोट किया जा रहा हो, इसकी कोई इतनी ख़ास इसकी रोकथाम की कोशिश ना की जा रही? क्योंकि जो सड़कों पर आने वालों में से एक तादाद है, मैं 100% नहीं कहता, एक तादाद है ये उन नौजवानों की है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूलों में पढ़ते हैं। ये दीनी मदारिस में पढ़ने वाले दीनी माहौल से वाबस्ता ये हरकतें नहीं करते होंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ये जो हालत इस वक्त अभी इन नए और ये यंग बच्चों की जो हालत है वो बड़ी एक कहना चाहिए कि मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनी है। इसमें सबसे पहले मीडिया, और मीडिया से साथ साथ जिस तरह से आपने असातिज़ा का बताया कि वो खौफज़दा होते हैं। बेसिकली असातिज़ा जब अपने काम में माहिर होते हैं, अपने सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करते हैं और अपने बिहेवियर को बहुत अच्छा रखते हैं, तो तलबा इनकी इज़्ज़त करते हैं। और जो असातिज़ा अपने सब्जेक्ट में माहिर नहीं होते वो डेफिनेटली उनसे खौफज़दा ही होते हैं। और फिर ख़ास तौर पे एक ख़ास तबका है और असातिज़ा में जो कि अनट्रेंड है, वो सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं, किरदार साजी नहीं कर रहे। यानी कि अगर आप ये देखें कि यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में वो एक ख़ास किस्म का सब्जेक्ट तो पढ़ा रहे हैं, मगर वे ऑफ लाइफ नहीं सिखा रहे कि वालिदैन से कैसे बात करनी है, ये कहीं पे भी नहीं है। बहुत कम जगहों पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें तो कर लें, मगर एक ख़ास तरबियत का पहलू। और जिस तरह से मदारिस में मैं क्योंकि बहुत मेरा करीबी ताल्लुक़ है और मैं बहुत विजिट्स भी करता हूँ और काम भी करता हूँ, डेफिनेटली मैंने देखा है कि अदब और एहतराम का एक लेवल है असातिज़ा का। स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अदब करते हैं, और आपने देखा होगा बाहर इस तरह की एक्टिविटीज़ में आपको मदारिस के तलबा का तस्वुर तो शायद ही हो। सर मैंने ये सवाल मदनी चैनल के नाजरीन जो उठाया है, देखिए 3 साल, 3.5 साल, 4 साल की उम्र में हमने हमारे बच्चों को स्कूल की नज़र कर दिया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, मतलब ये एक एजुकेशन की नज़र कर दिया। अब 8 घंटे 10 घंटे इसका ज़िंदगी का जो दौरानिया है वो ये है। आप जिस चीज़ की तब्दीली के ख़्वाह हैं, जो चेंजेस आप माशरे में चाहते हैं, और हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, और रमज़ान मुबारक की जैसे मिसाल के तौर पर आते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को
माह रमज़ान की आमद के बारे में कोई ब्रीफिंग दी गई? क्या उस मामले में कोई इनकी ट्रेनिंग की गई? क्या कॉलेज और यूनिवर्सिटी में और स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को क्या टीचर या हेड मास्टर या कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने आकर कुछ समझाया कि देखो बच्चों, रमज़ान मुबारक आने वाला है, रमज़ान मुबारक की रातें यूँ हैं रमज़ान, क्योंकि ये दीनी सब्जेक्ट ऐसा लगता है सिर्फ मदारिस में पढ़ाया जा रहा है, या एक मजहबी माहौल अलग है, एक दुनियावी माहौल अलग है। एक माहौल है जहाँ मज़हब, दीन और इसके तकाज़ों को सिखाया जा रहा है, और एक जगह वो है जहाँ पर वे ऑफ अर्निंग का और दुनिया का और ये वर्ल्डली एजुकेशन का और दुनिया में जीना कैसे है, पैसे कमाने के लिए ये सिखाया जा रहा है। हम इस पर जो मौजू लेकर चलते हैं ये वो अखलाकियात या वो किरदार की बातें हैं जिनको डेफिनेटली हमारा दीन, हमारा मज़हब उसको डिस्कस करता है, लेकिन चूँकि हमारी मेजॉरिटी दीनी माहौल से और दीनी मदारिस से और जामियात से दूर है और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की नज़र है। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, आप कहेंगे करोड़ों बच्चे वो हैं जो तालीम हासिल नहीं कर रहे, तो उनको जो इलाकों में जो माहौल बना हुआ है वो माहौल मजहबी नहीं है, वो माहौल दीनी नहीं है। लिहाजा आपको बहुत कम ना होने के बराबर वो परसेंटेज मिलेगी। ऐसे मजहबी नज़र आने वाले आपको नौजवान बाज मिलेंगे तो उनको माहौल अच्छा नहीं मिला होता, या वो मतलब कि वो बेचारे स्लिप हो जाते हैं, अल्लाह उनको हिदायत नसीब करे। मगर मेजॉरिटी आपको वो लोग मिलेंगे, वो नौजवान मिलेंगे। माजरत के साथ मेरे स्टूडेंट्स या मेरे नौजवान मुझसे नाराज़ ना हो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझिए कि ये जो भी आपको वन विलिंग करते हुए, बदतमीज़ी करते हुए, हुल्लड़बाजी करते हुए, ओआरटी करते हुए, रातों को गली के अंदर, ठीक है दाढ़ी वाला भी खिल रहा होगा इनके साथ कोई, लेकिन अब ये 11 और 11 22 लड़कों की अगर आप टीम ले लें तो उनमें 1 या 2 या 3 दाढ़ी वाले होंगे, बाकी सारे मतलब कि वो क्लीन शेव होंगे, 1 या 2 नमाजी होंगे, चंद एक नमाजी होंगे, बाकी सारे एक तादाद होगी जो बेनमाजियों की होगी। तो वो या तो वो रमज़ान मुबारक में वो थोड़े बहुत जो पैंट का फोल्ड, पैंट के 5-6 बॉटम ऊपर करके जो नमाजों के लिए मस्जिद में आते हैं, तो ये एक तबका है। ये तबका निकलता कहाँ से? मैं ऐसा सोच रहा हूँ अभी, आई डोंट नो कि आई एम राइट और रॉन्ग, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी बात कर दूँ कि वहाँ से दुरुस्ती पैदा की जाए। सब करोड़ों लोग वहाँ पढ़ रहे हैं। एक मिसाल मेरे सामने मौजूद है कि एक स्कूल है, मेरे ख्याल में मेरे सामने एक ही मिसाल है तो मैं इसलिए दूंगा, आप इसके बारे में आप चाहें तो मदनी चैनल के नाज़रीन, जी बगैर नाम की, मदनी चैनल के नाज़रीन को आपको ऐसा मैसेज दे दें कि उस स्कूल में हर सब्जेक्ट से पहले जो टीचर आएगा वो एक हदीस तमाम तलबों को सुना के फिर अपनी बात करेगा। आपके नज़दीक एक स्कूल है, एक एग्जाम्पल है। देखिए सर, मैं यहाँ भी मुझे ये लगता है, इम्प्रेशन ये आ रहा है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ये जो उलमा हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ हैं। क्या हम यानी कि इस अंदाज में बात करें, क्या हम खिलाफ हैं या उनके निज़ाम में कोई तब्दीली की बात करें? देखिए सर, खिलाफ हम कोई भी मजहबी आदमी हर उस चीज़ के खिलाफ होगा जो दीन से टकराएगी। अब वो कोई भी चीज़ हो जो दीन से टकराती है, मजहबी लोग उसके बारे में बात करें। इवन कि मस्जिद के अंदर एक शख्स आता है जो मस्जिद में शोर गुल करता है, मस्जिद में चिल्लाता है, मुंह में बदबू होती है, शरीयत ने उस शख्स को जो अथॉरिटी है मस्जिद की उसको इस बात का पाबंद किया कि इस शख्स को मस्जिद से बाहर निकाल दे। आप बोलो मस्जिद अल्लाह का घर है, तू कौन होता है? इसको दीन और इस्लाम इसको ये अथॉरिटी दे रहा है। क्या उसको अब मस्जिद के अंदर आने वाला भी अगर इतना गैर शरई तौर पर कि मस्जिद में आने की इस हालत में इजाज़त नहीं थी तो मस्जिद में आकर लोगों को तकलीफ दे रहे हो, अजियत दे रहे हो, तो इस्लाम उस अथॉरिटी को इस बात का पाबंद करता है कि वो इसको शरीयत के दायरे में रहकर मस्जिद से बाहर निकाले। बात ये है कि अगर कोई आकर इसको, मैं तो यहाँ भी आपसे आई एम वेरी सॉरी टू से सर कि मैं थोड़ा सा करूँगा कि जिसको हदीस या इसकी वजाहत करने का कहा गया है, क्या आया वो भी हदीस पढ़ने और उसकी वजाहत करने की अहलियत रखता है? क्या मतलब मेरे जैसा आदमी, चले मैं सिंपल से आपसे बात करता हूँ, मेरे जैसा आदमी अगर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाए, मुझे आप बोलोगे आप लेक्चर दे दें, तो क्या मुझे जाकर आप मैथमेटिक्स पढ़ाने देंगे? क्या मुझे जाकर आप केमिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट पढ़ाने देंगे? क्या मुझे बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट पढ़ाने देंगे? मुझे फिजिक्स की कोई थ्योरियाँ पढ़ाने देंगे? क्या मुझे आप अकाउंटिंग की कोई मतलब कि कोई वो एंट्रीज वगैरह, आप डेबिट क्रेडिट की कोई चीज़ आप करने देंगे? आप मुझे कहेंगे यार इमरान तुम्हारा ये लाइन नहीं है, तुम्हारी लाइन नहीं है। हाँ, तुम्हें अगर केमिस्ट्री पढ़ानी है तो तुम केमिस्ट्री में डिप्लोमा करो, तुम्हें अगर हिस्ट्री पढ़ानी है तो मैं हिस्ट्री में कोई चीज़ लें, तुम अपने प्रोफेशन को हमारे सामने प्रूव करो कि हाँ तुम्हें ये प्रोफेशन में महारत है।
تو ایک تو یہ چیز ہے. میں جو یہاں سر ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں, اپنے پوری جنریشن کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں, جو کچھ تو کوئی تو ہوگا جو میری بات کو پرسنل نہیں لے گا بلکہ ایک سسٹم کے نام پر لے گا. نہیں یار یہ ٹھیک ہے میری پرسنل, میری ذات کو اس کی بات ہٹ کر رہی ہے, لیکن بات درست ہے. کیا ہمارا یہ ادارے جو کالج یونیورسٹیز اور اسکول کے ادارے ہیں, میں اب تمام اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں, میں 100% میں بات نہیں کرتا, میجورٹی میں بات کرتا ہوں, کیا رجب المرجب میں آپ کو رجب المرجب کے کتنے فضائل بیان کیے گئے؟ کیا یہ کہا گیا کہ رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان آبیاری کا مہینہ ہے, رمضان نیکی کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے؟ دیکھو رجب المرجب یوں منانا ہے, رجب المرجب میں روزے یوں رکھنے ہیں, شعبان کے روزے یوں رکھنے ہیں, دیکھو رمضان کی راتیں آئیں گی تو ان راتوں میں تراویح اس طرح پڑھنا, دیکھو ان راتوں میں روزے, ان کے دنوں میں یوں روزے رکھنا, دیکھو راتوں کو یہ نہیں کرنا, راتوں کو وہ نہیں کرنا, اس میں تلاوت اتنی کرنا. میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں سمجھاتا ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی نہیں سمجھاتا ہوگا, لیکن جتنی بھی کالج اور یونیورسٹیز اور اسکولیں ہیں, کیا ان کے اندر یہ چیزیں, ایک مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں, اسپیشلی اسلامی جمہوریہ اسلامی مملکت جمہوریہ اسلام یہ پاکستان اور اس طرح جو بھی اسلامی ممالک ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ کیا وہاں پر یہ ہے؟ جب نہیں ہے, آلموسٹ نہیں ہے, میجورٹی کی بھی بات کر رہا ہوں نہیں ہے. اب آپ کس چیز کی تبدیلی چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جو گھر پر آ رہا ہے تو اس کو پھر ٹیچر آ رہا ہے اسٹوڈنٹ کو وہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے, یا خود جا رہا ہے کسی کوچنگ سینٹر کے اندر, تو اس کے مطلب کہ 8, 10, 12 گھنٹے تو اسی طرح گزر گئے. جب وہ گھر آیا تو اس کو موبائل فون مل گیا, یا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فلمی ڈرامے دیکھ رہا ہے. اس کو کب کہا گیا تھا کہ رمضان آنے والا ہے, ٹی وی مت دیکھنا, ٹی وی پر ڈرامے نہیں دیکھنا, ٹی وی پر فلمیں نہیں دیکھنا, فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے, ڈرامے دیکھنا جائز نہیں ہے. اس طرح کے بے پردگی والے شوز آتے ہیں, میوزیکل شوز آتے ہیں جس میں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں اور میوزک بجائے جاتے ہیں اور غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں, یہ دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. جب یہ چیزیں ہمارے یہاں ایک پلیٹ فارم سے یا 2 یا 3 پلیٹ فارم سے ایک چیزیں جا رہی ہیں, لیکن میجورٹی پلیٹ فارم سے وہ چیزیں نہیں جا رہی ہیں, اور میجورٹی ان پلیٹ فارم کو زیادہ پریفر کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر, تفریح کے نام پر. اب ہم آئیں گے رمضان کی راتیں, تو رمضان کی راتوں کا اصل درد تو شعبان کی راتوں میں دینے کا تھا, شعبان کے مہینے میں دینا تھا. کہ یہ جو استقبال تو پہلے کیا جاتا ہے نا, کسی کے آنے کے بعد تھوڑی کیا جاتا ہے کہ ارے آپ آ گئے, ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ رکیے, ہم تھوڑا سجا لیں, ہم استقبال کر لیں. استقبال تو کسی کی آمد سے پہلے کیا جاتا ہے. کالز لے لیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالوہاب اتاری، باب المدینہ، کراچی، حلقہ فیضان مرشد. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں یہ شہری پارٹی کے نام سے ہوٹلوں میں جا کر جو ہے وہ کھایا پیا جاتا ہے, اور روزہ رکھنے کی نیت سے اب کوئی بندہ باہر جائے اور تو کیا یہ اس میں جانا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں سحری کے نام پر اگر کوئی کہیں کھلانے کی دعوت دیتا ہے گھر کی یا باہر کی, اور وہاں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے, کوئی مانع شرعی نہیں ہے, نہ کھانے میں کوئی ایسی غیر شرعی چیز ہے, نہ وہاں کا ماحول کو غیر شرعی یعنی بے پردگی نہیں ہے اور میوزک نہیں ہے, اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں, اور کوئی ایسی چیز اندر یا باہر مطلب جہاں جا رہے ہیں کہ جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو, تو ایسی دعوت میں جا کر آدمی کھائے پیے اور سحری کر کے روزہ رکھ لے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر اس طرح کا ماحول ہونا نہیں چاہیے جس میں خلاف شرع کام ہو رہا ہو. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ندیم اتاری گجران والا سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کا یہ سلسلہ مثالی معاشرہ ماشاءاللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. آج جو ایک نام دیا گیا اس بہت پیارے موضوع کو مثالی معاشرہ, تو میرے نظریے میں اگر مثالی معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے باپا کو دیکھ, جنہوں نے اس معاشرے کو مثالی بنایا, اور الحمدللہ آج دنیا والے میرے باپا کی مثال لیتے ہیں. نگران شورا الحمدللہ ہمارے لیے مثالی شخصیت ہے کہ ان کی شخصیت ماشاءاللہ ایک مثالی شخصیت بن کر ہمارے سامنے الحمدللہ تشریف لائی, اور پوری دنیا میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام عام کیا.
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल के सारे अमले को बरकत अता फरमाए और हम सब को रमजान में बाबा के साथ चल मदीना की सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि अमीर सुन्नत की 35-36 साल की दावत इस्लामी के अंदर की कोशिशें, दावत इस्लामी से पहले की कोशिशें, 7 करोड़ मरहबा, दावत इस्लामी के अंदर की कोशिशें, यानी ये इस बात की दलील है कि अगर एक शख्स पूरे अज़म के साथ, पूरे इरादे के साथ, तक़वा परहेज़गारी के साथ और इश्क़ रसूल के साथ, इश्क़ सहाबा और इश्क़ अहले बैत के साथ और अपने इल्म और अमल के साथ और सेक्रीफाइस के साथ, कुर्बानियों के साथ अगर इस माशरे में तब्दीली लाने की कोशिश करे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से उसको कामयाबी नसीब होती है। ये मिसाल अमीर सुन्नत की ज़ात में बिल्कुल मौजूद है कि जो वो खुद कहते हैं, मैं तो तन्हाई चलाता जानिब मंजिल, मगर एक एक आता गया कारवां बनता गया। वो नूर मस्जिद जिसमें आपने तन्हा अकेले एतिकाफ़ किया था, वहाँ से वो एतिकाफ़ की एक ऐसी तहरीक चली है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि फैज़ान मदीना मदनी मरकज़ बाबुल मदीना कराची में 4,500 के आसपास एक माह के मुतकिफ़ मौजूद हैं। अल्लाह, एक माह के मुतकिफ़, सिर्फ फैज़ान मदीना की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के दीगर इलाकों में, दीगर शहरों में ये अलग अलग तादाद है, यकीनन इतनी नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तादाद वहाँ भी मौजूद है। तो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि 1,000 इस्लामी भाइयों को, जिनमें शायद कह सकते हैं कि 95% नौजवान होंगे, ये जिन नौजवानों को हम कह रहे हैं जो रातों को, रमज़ान की रातें ये गफलत में गुजार रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उनकी भी तादाद अगर लाखों में हो भी तो कोई ताजुब नहीं है, लेकिन वो भी हज़ारों की तादाद में हैं जो इस वक्त रमज़ान के रात और दिन अल्लाह की इबादत में गुजारने के लिए दावत इस्लामी की छतरी के नीचे जमा है। और ये मदनी इनकलाब है। यानी आप जो मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं और जो थोड़े बड़े बूढ़े इस्लामी भाई हैं, ये मेरी बात को इंशाअल्लाह एंडोर्स करेंगे कि पहले एक वक्त था कि चंद एक बूढ़े इस्लामी भाई ये मस्जिद में इत्तिकाफ़ किया करते थे और लोग इनको देते, वो मुँह पे कपड़ा डालते थे, तौलिया डालते थे, थोड़े पर्दे डालते थे, यूँ डाल कर बैठते थे। तो आज वो रुझान ना रहा, अब बदल चुका। अब हमारे यहाँ फॉर्म सिस्टम है, फॉर्म फिल किया जाता है, शनाख्ती कार्ड जमा करवाए जाते हैं और आखिरी अशरे के जो आने वाला है मुतकिफ़ीन का एक रेला, उसके बारे में हम प्लान कर रहे हैं कि हम संभालेंगे कैसे। यानी अल्लाह ने वो वक्त दावत इस्लामी को दिखाया। ए मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, इस पुरफितन दौर में जहाँ हम रमज़ान की रातें गुनाहों में गफलत में गुजारने वालों पर सिलसिला करने के लिए बैठे हैं, इस पुरफितन दौर में जहाँ गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे और मतलब के गुनाह भरे इंटरटेनमेंट प्रोग्राम इस मतलब के माशरे को बिगाड़ने और ख़राब करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। और एक मतलब के शोहरत और दौलत ने इनके मतलब के दिमाग को पता नहीं क्या कर दिया है कि इनको शरीयत और दीन के बुनियादी अहकामात भी शायद इनकी इतनी समझ में नहीं आ पा रहे। मैं इतना क्या ज़्यादा खुलूँ। ऐसे पुरफितन दौर में दावत इस्लामी के मैं मुबल्लिगीन को, ज़िम्मेदारान को करोड़ों सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने कोशिशें करके इनका जहन बनाकर इन्हें पूरे माह के एतकाफ़ के लिए तैयार किया। और मैं अभी से मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम खुश नसीब आशिकान रसूल को जो रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ की नीयत किए हुए हैं कि हमने आखिरी अशरा गुजारना है। और मैं उन इस्लामी बहनों को दुआ, क्या मैं गुनाहगार आदमी हूँ, अल्लाह ताला इनको रमज़ान की बरकत अता फरमाए कि जिन्होंने इस बात की नीयत की हुई है कि हमने रमज़ान की रातों को, इसके दिनों को बाज़ारों में, शॉपिंग सेंटरों में और गुनाह भरी दावतों में गुजारना नहीं है, हमने इसको अपने घरों में बैठकर अल्लाह की इबादत करके गुजारना है। मैं कहता हूँ कि रोज़ाना जब आप उठें तो आप ये अज़म करके पूरा वक्त अब गुजारें कि या अल्लाह अब जो घड़ियाँ हैं मैं इसको इस तरह गुजारूँ कि मेरी बख्शिश हो जाए। सोने से पहले ये सोचें कि क्या मैंने आज अपनी बख्शिश करवा ली होगी, और जब उठें तो फौरन ये ज़हन बनाए कि आज अपनी बख्शिश करवा कर सोऊंगा। कॉल्स लेते हैं जी। आपका प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। सलमान भाई और इमरान भाई और एक इस्लामी भाई और है माशाअल्लाह, बहुत अच्छे से माशाअल्लाह बातें हो रही है माशाअल्लाह। और कल तो इमरान भाई हम लोग डर गए थे कि ये क्या हो गया अचानक, तो
हमें हमारी इस्लाह के लिए ये सारे प्रोग्राम माशाल्लाह किए जाते हैं, तो हम इससे माशाल्लाह हम लोग सब सीख रहे हैं। और हम घर वाले कल वाकई डर गए थे, तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। डर गए थे इसे समझाएं। अल्फाज है ना, मौजू अल्फाज तीर बन जाते हैं। में अपने अल्फाजों पे ज़्यादा गौर किया उन्होंने कि हम आम जिंदगी में इस तरह से मिसयूज़ कर जाते हैं। आपको मुबारकबाद देता हूँ, मेरे जो साहिल मोहतरम है जिन्होंने कॉल की, कि आप डर गए। सदमा यह है कि लोग डरते नहीं हैं। अल्लाह अकबर। आप डर गए, आप नसीब वाले हैं। मुझे भी अल्लाह अपना सही मायनों में डर नसीब करे। वाकई जो यहाँ डरेगा ना, वहाँ डर से बचा लिया जाएगा, और जो यहाँ बेखौफ रहेगा, डरेगा नहीं, बेबाक रहेगा, डर है कि उसे क़यामत के रोज़ खौफ पे मुब्तला कर दिया जाएगा। तो आप नसीब वाले हैं, तो बस पहले तोलो बाद में बोलो। और जो ये मुबारक अय्याम अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब की उम्मत को अता फरमाए ना, इनकी कदर करें और अपनी रूटीन को आज के आज तब्दील करें, अभी के अभी तब्दील करें। हम अपने कैफियत को और अपनी सूरतों को, अपनी हालतों को बदलें। खाने पीने के, मैं ये नहीं कहता खाने पीने के और भी दिन है, बस इबादत ही है, लेकिन ये ख़ास महीना आया है, इसको खाने पीने और लज्जतों में, यानी खाने पीने की और नफसानी लज्जतों में गुजारने के बजाय एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक सीज़न आया है, सीज़न। और आज आप मार्केट में जाएं, कारोबारी लोग बिल्कुल वो औंधे पड़े हुए हैं। गारमेंट्स वालों की हालतें ख़राब हैं, कपड़े वालों की हालतें ख़राब हैं, तो दर्जी जो हैं हमारे, जो खयात कहलाते हैं, इनकी हालतें ख़राब हैं। सीने में ये जूते बेचने वालों की हालतें ख़राब हैं कि ये मतलब इनको भी एक ऑर्डर आ जाए, ये निकल जाए, वो निकल जाए, ये निकल जाए, वो निकल जाए, क्योंकि इनको पता है कि ये महीना, क्योंकि लोग ख़रीदारी बहुत करते हैं ना, लोग रमज़ान मुबारक में इबादत से ज़्यादा ईद की तैयारी पर तवज्जो करते हैं कि हमें ईद की तैयारी करनी है। और उस खास वक्त जो इफ्तार का वक्त है, कबूल दुआ का वक्त, मग़फ़िरत का वक्त है, वहाँ पर अपने रब से हाथ उठा कर रो कर अपने लिए बख्शिश के परवाने लेने की हमें सोच होनी चाहिए, ना कि ये खाना ठंडा ना हो जाए और ये मतलब चीज़ें ख़त्म ना हो जाए। तो ठीक है, जो एक जायज़ और तैयब चीज़ खाने पीने की है वो एक अपनी जगह पर है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बख्शवा ये महीना जाना नहीं चाहिए जब तो हमारी बख्शिश बस हो जाए। जाना तो है, इसको अपनी बख्शिश पर तवज्जो दें। रातें भी इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएंगी और इंशाअल्लाह इस महीने की बातें भी मदीना मदीना हो जाएंगी। कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फारूक नगर लाड़काना से मोहम्मद रजा अत्तारी निगरानी शुराई बारगाह में आज फैजान मदीना में रात गुजारते हैं, उसको बोले क्या करना चाहिए, कैसे गुजारना चाहिए फैजान मदीना में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी मदनी इल्तिजा है कि आप असर फैजान मदीना में अदा करें, उसके बाद मदनी मुज़ाकरा, उसके बाद आपको दुआ इफ्तार मिलेगी, यहीं मगरिब पढ़ें, फिर चाहें अगर आप घर करीब है, आप जाना चाहते हैं घर जाकर खाना खा लें, और उसके बाद अगर हो सके तो भले तरावी भी यहाँ अदा करें। तो एक दुनियावी लालच भी यहाँ है लोगों के लिए, दुनियावी कशिश है कि एयर कंडीशन भी है और एक अच्छे और एक मतलब ठंडे माहौल में लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं और लुत्फ़ उठा रहे हैं नमाज़ों से, जो भी है एक मिल रहा है इनको लुत्फ़। तो तरावी यहाँ, तरावी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर सिलसिला होता है मदनी मुज़ाकरे का, दुआएं होती हैं। तो इस तरह रात आप चाहेंगे तो फैज़ान मदीना में गुजारने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ इसलिए आना कि यहाँ खाना पीना मिलेगा ये नहीं, यहाँ सच्ची बात है यहाँ जन्नत के मेवे तकसीम होते हैं। अल्लाह अकबर। खाना तो आपके घर में भी मिल जाता है, यहाँ इल्म दीन के हल्के लगते हैं, यहाँ इल्म दीन फैलाया जाता है, यहाँ जन्नत के मेवे तकसीम होते हैं। या आशिकान रसूल कहाँ हो तुम, फैज़ान मदीना आ जाओ। यहाँ पर मतलब हमें कौन से आपसे पैसे मिलेंगे, हाँ हम आपसे चंदा ज़रूर मांगते दावत इस्लामी के लिए, हमें अरबों रुपए चाहिए। ए मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी को अपने मदनी अतियात दे, अपनी ज़कात दे, अपना फ़ितरा दे, दीगर अल्लाह ने आपको जो दिया है दावत इस्लामी को दे दें कि यार ये तहरीक तरक्की करनी चाहिए, ये तहरीक आगे बढ़नी चाहिए, इसके मदारिस, इसके जामियात बढ़ने चाहिए। ये मदनी चैनल फ्री चलाते हैं। ऐसे दौर में ये मीडिया पर आकर बैठे हुए, जहाँ मीडिया इतना ख़राबी पैदा कर रहा है, और ये
कैसा ये चैनल लेकर आए हुए हैं। इस चैनल की इस रमज़ान में 9वीं सालगिरह है, अल्हम्दुलिल्लाह 9वां साल है दावत इस्लामी 9वीं सालगिरह मना रही है मदनी चैनल की, अल्हम्दुलिल्लाह। 10 रमज़ान मुबारक को ये मदनी चैनल शुरू हुआ था, आज हम इसकी 9वीं सालगिरह मना रहे हैं अल्लाह की रहमत से। और बग़ैर एडवर्टाइजमेंट, जब से ये शुरू हुआ तब से आज तक एक भी एडवर्टाइजमेंट दावत इस्लामी ने मदनी चैनल पर नहीं दी है, जिसको एडवर्टाइजमेंट आप कहते हैं, नहीं दी है। आपके चंदों से, आपके अतिया से, आपके डोनेशन से ये मदनी चैनल चल रहा है। और आप इस मदनी चैनल के ज़रिए ये देख रहे हैं कि दावत इस्लामी क्या कर रही है और इस्लाही माशरा में अपना कितना बड़ा किरदार अदा कर रही है। और इसको, इस पूरे काम को करने को अरबों खरबों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, यह हर अक्लमंद आदमी समझ सकता है। और डेफिनेटली आपकी ज़कात, फितरा और कुर्बानी की खालों से हमें मिलते हैं। लिहाजा आप आगे बढ़े, खुद आगे बढ़े, घर से निकल कर दावत इस्लामी वालों को मदनी अतियात दें, दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान को लें। मगर जब भी मदनी अतियात दें, चंदा दें, फ़ंड दें, डोनेशन दें, दावत इस्लामी को हर नेक और जायज़ काम में ख़र्च करने के इख्तियारात के साथ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपको और भी, हमें भी फ़ायदा होगा, अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए भी इसमें आसानियाँ हैं। और रसीद ज़रूर हासिल करें, रसीद ज़रूर हासिल करें। इस रसीद पर भी हमारी कुछ ताकीद लिखी हुई हैं, वो दें, हमें कंफर्म भी कर दें कि आपने इतने पैसे दे दिए हैं। हमारे बैंक अकाउंट है, आप चाहें तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट के अंदर आप अपना डोनेशन, दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं आप ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं, आप बैंकिंग के ज़रिए डोनेशन कर सकते हैं। कॉल चलाएं। ये मुझे ये कहना है कि हमारे जो आजकल के लड़के रात को ताश खेलते हैं उनको कैसे रोका जाए। और किसी टाइम तो मेरा दिल करता है यार जिस लाइट के नीचे खेल रहे हैं इसको मैं तोड़ दूं, लेकिन कोई और अखलाकी तरीका क्या है कि उनको मेरी बात समझ आ जाए। जबरदस्ती भी मैंने करके देख ली है, प्यार से भी समझा के देखा है, लेकिन वो बाज नहीं। देखिए, नेकी की दावत नरमी से दी जाएगी और हम बिल्कुल स्पॉट पे जाकर सख्ती करने की कोशिश करते हैं। जो भी काम शुरू से करना चाहिए था सर, तरबियत तो शुरू से की जाती है। निगरानी मेरा यही सवाल था, ये जो शुरू से ही करना चाहिए था स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, अब तो ये एक रियलिटी है कि ये एग्जिस्ट करता है, एक बहुत बड़ी तादाद इनमें जाती और आती है। आप रहनुमाई फरमाएं कि इस वक्त क्या किया जा सकता है। टीचर्स, जितने भी आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स हैं, अगर वो सुन रहे हैं, ठीक है, उनके अपने प्रोफेशन पर हम इनसे कोई कलाम नहीं करते, लेकिन इस्लाम और दीन ने जो मैनर्स और अखलाक और किरदार को संवारने के जो उसूल बयान किए हैं, आपने अपने प्रोफेशन को भी कहीं जाकर सीखा है, तो आप इन चीज़ों को भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आकर सीख लें और इससे आप अपने इदारों में जाकर आप इससे डिलीवर करें। इंशाल्लाह इससे आप देखिए माशरे में रैपिडली चेंजेस ना आ जाए तो मुझे कहिएगा, लेकिन पहले सीखना पड़ेगा। क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो हेड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके लिए वो आ जाएं, वो आके हमसे कोई प्रोग्राम ले लें? पूरा शोबा है हमारा, हमारी मजलिस बनी हुई शोबा तालीम की। और अगर मतलब ये जो भी अथॉरिटीज़ हैं, अगर ये चाहें कि हमारा एक दिन का कोई सेशन हो जाए, इवन कि चाहें कि हमारा 1 घंटे का सेशन हो जाए, तो हमारे पास 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिनों के लिए हमारे पास तो बहुत सारे जो समझिए कि ऑप्शंस मौजूद होते हैं। वीकेंड पर होते हैं, हॉलीडे पर होते हैं, सीजनल होते हैं, वो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। अगर वो अभी भी हमसे रब्ता करना चाहें तो रब्ता करें। अभी तो सीखने के लिए बेहतरीन ज़रिया दावत इस्लामी का सुन्नत व इतिकाफ़ है, यहाँ आ जाए, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी में जाना हुआ था, वहाँ के एडमिन हेड ने ये रिक्वेस्ट की कि दावत इस्लामी से कोई आ जाए, हम वहाँ पे ओपन टॉक करते हैं और अपने तलबा को जमा करते हैं, आप आएँ, उनको कुछ नेकी की दावत दें, तरगीब दिलाएं, कुछ बयान करें। तो इस तरह का हमारे पास फैसिलिटी है कि अगर कोई स्कूल, कॉलेज या कहीं पे भी हमें बुलाया जाए, वो स्टूडेंट्स को जमा कर लें या ख़ास टीचर्स को जमा कर लें, उनकी हम तरबियत फरमा दें और कर दें, तो कैसा रहे? मतलब जाएंगे, सीखने सिखाने का सिलसिला करेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है कि उनके भी कुछ एक्सपीरियंस से हमें फ़ायदा हो और हम भी इनको जाकर कोई 2 बातें बताएंगे दावत इस्लामी से हमने क्या सीखा है। तो ये है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रमज़ान शरीफ की रातें जैसे बाज़ औक़ात गुजर रही होती हैं तरीक़ेकार के, मतलब यहाँ मैसेजेस भी हैं इस टाइम भी कैबिन है कि मैं भी पहले रमज़ान की रातें इसी तरह फजूल कामों में गुजारता था, अब मैंने नियत की है इंशाअल्लाह अब मैं इबादत में इंशाअल्लाह ये रातें गुजारूँगा। यहाँ एक सवाल मैसेजेस के ज़रिए से ये है
کہ ان راتوں میں، رمضان کی ان راتوں میں لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، انہیں کیسے سمجھایا جائے، ایک تو یہ بتائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح رمضان شریف کی عام راتیں ہیں وہیں پر بڑی راتیں بھی ہیں، خاص راتیں بھی ہیں جیسے طاق راتیں ہیں، ان میں بھی یہی نظام چل رہا ہوتا ہے، اور یہ کھیل کود کے ساتھ ساتھ ایک بڑا طبقہ جو ہے یہ بازاروں کا بھی رخ ان راتوں میں کر رہا ہوتا ہے، شاپنگ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے سینیریو پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، اول تو یہ کہ یہ بات ذہن نشین ہو کہ یہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں نارملی طور پر یہ جس لائٹ کو استعمال کرتے ہیں وہ عموماً کنڈے کی لائٹ ہوتی ہے جی، اور یہ شرعاً ناجائز ہے. جی، اور ایسے لوڈ شیڈنگ کے دور میں جہاں لوگ پنکھے کو ترس رہے ہیں، آپ کئی ہزار کی لائٹوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور ایک فضول قسم کا، اور بعض صورتوں میں تو اس کو بہت زیادہ اس کی مذمت کی جائے گی. پھر یہ کھیل کھیلتے ہیں آپ، اور ایک لائٹنگ کا جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی شرعاً درست نہیں ہوتا نارملی طور پر. تیسری بات، شور و گل. جی، علاقوں میں اس قدر شور مچتا ہے کہ حقوق العباد اس میں تلف ہونے کے پورے چانسز ہوتے ہیں. روڈیں بند کر دی جاتی ہیں، سڑک بند کر دی جاتی ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں. پھر یہی پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ کبھی کسی اور موقع پر پھر چلاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ 12ویں شریف کو جو چراغاں کیا جاتا ہے، جو بالکل 100% کرنا چاہیے، اللہ میں توفیق دو، خوب چراغاں کرنا چاہیے. جشن ولادت کی خوشی میں خوب روشنی کرنی چاہیے. اس روشنی کے لیے بھی کنڈے کی لائٹ کا استعمال کرنا ناجائز ہے، جبکہ وہ کام اپنے طور پر کس قدر بابرکت اور نیکیوں بھرا ہے، لیکن اس کا کرنے کا طریقہ بھی تو پھر بتایا جاتا ہے نا. تو آپ تو یہ کہ شور مچا رہے، یہ سب کر رہے، تو ایسا نہ کریں، اس سے بچیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ بڑی راتوں میں بھی جو ہے وہ بازاروں کا رخ ہو جاتا ہے. تو یہ بازاروں کا رخ وغیرہ بس کیا کرے، تیاری کا ایک عجیب ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا. کپڑے تیاری کتنی حد تک کیسی ہونی چاہیے؟ مطلب دیکھ، شاپنگ بھی ضروری ہے، لوگ ایک پوری فیملی ہے. ہاں، تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق لوگ ایسے ہی بازاروں میں جا رہے ہوتے ہیں، پر سے گھما کر بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، کچھ خریداری کرنی نہیں ہوتی ہے، اور فضول قسم کا ایک رجحان بنا ہوا ہے. حسب ضرورت عید کی خریداری کے لیے، کپڑے لینے کے لیے بازار میں شریعت کے تقاضے پورے کر کے جانے کو منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہر چیز اپنی لمٹ میں اچھی لگتی ہے. سر ایسے عجیب و قسم کے اوباش قسم کے نوجوان بازاروں میں جاتے ہیں، بے پردگیاں ہوتی ہے، بے شرمی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے. کیا رمضان کی راتیں سر اس لیے تو نہیں نا ہے؟ کال لے لیں. جی، السلام علیکم عمران بھائی اور تمام احباب. شاہد علی خان عرض کر رہا ہوں کراچی سے. کل بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی، جزاکم اللہ خیرہ. تو آج آپ نے بڑا اچھا ٹاپک اٹھایا ہے مثالی معاشرے کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے. جو عمران بھائی اور سلمان بھائی کو تو میں جانتا ہوں، دوسرے جو آپ حضرت بیٹھے ہیں تو ان کا نام مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے تھوڑا سا ایک پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ جی اسٹوڈینٹس کو جب ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس کو گرپ نہیں ہوتی. تو میرا اپنا بڑا ایکسپیرینس ہے او لیولس کا، اے لیولس کا، گورنمنٹ اسکولس کا. تو اب جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دو طبقہ ہمارے معاشرے میں ہے. ایک بہت ہی ایلیٹ کلاس کہہ لیں، تو ان کے پاس تو تربیت یا رسپیکٹ ہے نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیلری پے کرتے ہیں تو ٹیچر کو ملتا ہے. تو جو قابل بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی وہ رسپیکٹ نہیں کرتے، اس کو ایز اے سرونٹ لیا جاتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے، جاب کرنا آتا ہے، ہمارا نوکر ہے. اور یہ حقیقت پہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سے، اور یہ کوئی جھوٹ موٹ نہیں ہے بات. اور دوسرا، گورنمنٹ سیکٹر میں تو بچے نہیں آتے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اچھا قابل ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی رسپیکٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ادب آداب نہیں ہوتا. کیونکہ میرا اتفاق سے ٹیچنگ، ٹریننگ، کرکٹ کوچنگ سے واسطہ ہے، تو اس سے زیادہ تو رسپیکٹ ہمیں کرکٹ اکیڈمی سے ملتی ہے کہ ہم جاتے ہیں تو بچے کیپ اتار لیتے ہیں، اسلام کرتے ہیں. تو واقعی عمران بھائی کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے. اور ٹیچر 6-8 گھنٹے میں نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایک عجیب المیہ ہے کہ 18 گھنٹے یا 15 گھنٹے گھر پہ رہتا ہے. تو جو ماں باپ کو تربیت کرنی چاہیے وہ اس کو ٹائم نہیں دیتے. جب ٹائم اوپر ہو جاتا ہے تو وہ پھر اساتذہ اسکول ادھر ادھر بلیم کرتے رہتے ہیں. تو جب تک پیرنٹس مذہبی نہ ہوں، نمازوں کی پابندی نہ کریں، اخلاقی تربیت نہ کریں، تو بچہ اسکول سے، جنرل اسکول سے نہیں سیکھ سکتا. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے اخلاقیات کا پیریڈ ہی نہیں ہوتا. اسلامیات کے پیریڈ میں بچے
कागज की बॉलें बना बना के टीचरों को मार रहे होते हैं। तो मेरी एक बड़ी रिक्वेस्ट है कि हमें स्कूल सिस्टम पे काम करना चाहिए, यूनिवर्सिटी सिस्टम पे काम करना चाहिए। और अब एक मिसाल दूं मैं आपको, कराची इतना बड़ा शहर है, वहाँ कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी खवातीन के लिए नहीं है जहाँ से वो MBBS कर सके। वो कोई एजुकेशन सिस्टम में जाती हैं और वो एजुकेशन सिस्टम का आपको पता है। शाहिद भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे, और आपने आज एक बार फिर कॉल की, मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे टॉपिक को सराहा, पसंद किया, फिर मज़ीद ये कि आपने अपने एक्सपीरियंस भी हमें डिलीवर किए। हमारे साथ जो हैं इनका हम सर फरीद अत्तारी, ये हमारे हैं और हमारे साथ वाबस्ता हैं, और ख़ुद ये टीचिंग फील्ड है, इनकी ट्रेनिंग भी इनकी फील्ड है, तो ये इनका ये भी प्रोफेशन है। और आपकी बात को ये किसी हद तक इंडोर्स भी बिल्कुल करते रहें कि ऐसा होता है। मसला यही है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इनकी अखलाकी तरबियत नहीं हो पा रही। इसके लिए टीचिंग जो प्रोफेशन है, इसको दीन और इस्लाम की तालीम और तरबियत को लेकर अपने इदारों में जाना पड़ेगा। ये जो अजीब कल्चर बन गया है कि जनाब जितना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूलों में होगा, माँ बाप भी उन्हीं इदारों को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, उनकी महंगी महंगी फ़ीसें दे देते हैं कि बच्चा पानी की जगह पर वो वाटर कहना शुरू कर दे, और सिट डाउन कहना शुरू कर दे, तो स्टैंड अप कहना शुरू कर दे, तो इसका मतलब एजुकेशन हो रही है। असल में तालीम और तरबियत दोनों में फ़र्क है। अगर कहीं तालीम दी भी जा रही है तो वह तरबियत नहीं है। और मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि औलाद की पहली तरबियत गाह उसके वालिदैन ही हैं। इस असल में पहली स्कूल ही घर है, और पहले टीचर ही माँ और बाप हैं। अगर वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे तो इनकी तरबियत कैसे होगी। अब उनको भी चाहिए, देखिए सबको चाहिए माहौल में, जो सब आज का समझेंगे ये एक खुलासा है, सबको चाहिए माहौल। माहौल मिलता है तो अब जैसे मैं आपको थोड़ा 2 मिनट के लिए एक तरफ लेके जा रहा हूँ, ज़रा अमीर सुन्नत और वहाँ की आवाज़ सुनाइए, और इस्लाम भाई भी दिखाइए। नहीं चाहते पूरी खसलत नहीं चाहते, मैंने देखा इस्लामी भाइयों को देखा जी, पूरी फसलत नहीं चाहते, हाय नहीं चाहते पूरी फसलत नहीं चाहते। दिन रात मुसलसल है गुनाहों का तसलसल, या रसूल अल्लाह मेरे आका, गुनाहों की नहीं जाती है आदत, या रसूल अल्लाह तुम ही अब कुछ करो माहे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अच्छा, अब ये आप में से शायद एक की तलब होगी कि ये चलता रहे, और बहुत अच्छी तलब होगी, लेकिन चूंकि मैं एक मैसेज डिलीवर करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ कि मुझे दोबारा वापस आना पड़ा। शाहिद भाई, आपसे भी और इस तरह जितने भी हमारे नाजरीन हैं उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वक्त अमीर सुन्नत को एज ए टीचर, बिकॉज ही इज टीचर कम प्रीचर, ठीक है, आप एक ऐसा तस्वुर करें। और ये जो नौजवान आपको दिखाए गए स्क्रीन पर चलाते रहें इनको, ये जो नौजवान है, ये देखें, ये इसमें कोई कॉलेज का है, कोई यूनिवर्सिटी का है, कोई महल्ले का, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई क्या है। ये घरों से आए, अपने इलाकों से आए, पाकिस्तान के और पाकिस्तान के बाहर के बाद शहरों से और उससे आए, अपने अपने माहौल से ये आए हैं। लेकिन इनके सामने एक रोल मॉडल है कि एक ऐसी शख्सियत है जिसको ये अपना पीर समझते हैं, बुजुर्ग समझते हैं, उस्ताद समझते हैं। अच्छा, उनसे इम्प्रेस भी हैं, उनकी तरबियत देख रहे हैं कि वो एक शख्सियत खुद एक नेक और पारसा तबीयत होने के बावजूद गुनाहों पर रो रही हो, अपने गुनाहों को याद कर रही हो, सब इनके सारी आजिज़ी के ये मनाजिर देख रहे हो, तो वहाँ पर इनकी इस कैफियत का जो परतव है, इनकी कैफियत का जो एक साया है,
وہ آنے والوں پر پڑتا ہے. دیکھیں ٹیچر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں, استاد سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اب یہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی بڑی شخصیت, اتنی یہی کیفیت میں ہے, تو میں تو ویسے گناہگار سیاہکار ہوں. یہ قلب کی کیفیت بدلتی ہے. الصحبت و مؤثرہ, صحبت میں اثر ہوتا ہے حدیث پاک میں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر ایسے ماحول ہمیں ملتے رہے نا تو یہ تبدیلی کی آپ دیکھیں گھر میں بھی ایسا ملے, جب بچے اپنے ماں باپ کو اللہ کی یاد میں روتا دیکھیں گے, جب اسٹوڈنٹ ٹیچر کو اللہ کی یاد میں روتا دیکھیں گے, اور ان کو اسلام و دین اور اسلامی اخلاقیات پر عمل کرتا دیکھیں گے, تو ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ بہتری آئے گی, اور یہ معاشرہ انشاءاللہ مثالی معاشرہ بنے گا. اجازت دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان, بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے.